Very good morning to all of you. Today we will discuss about types of molecular crystalline solids and characteristics of each of the category of this molecular crystalline solid. So, if we see these molecular crystalline solids, they are categorized as non-polar molecular crystalline solid, polar molecular crystalline solid and hydrogen bonded molecular crystalline solid. मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जहाँ पर हमने नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन कैटेगरी में देखा। अब अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं तो वन बाय वन हम लोग इसकी डिटेल करेंगे। लेट अस सी। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ non-polar molecular crystalline solid, solid. Number 1, they have their constituents as molecules Number 2, the constituents are bonded by London force or dispersion force, you can say dispersion force. Next, third point is these solids are insulators. Fourth point, they have low boiling point and melting points. Fifth point, they are soft. For example, argon, solid H2, solid I2, solid CH4, methane, solid CO2, that is called dry ice. So यहाँ पर हमने देखा कि जो नॉन पोलर मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं कि दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज ए मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली bound together by weak force that we call London force or dispersion force. Actually, London force was discovered by a scientist, Fritz London, and it was developed according to him that by the dispersion of electrons due to certain specified condition, by the shifting of electron from one end to other, the momentary charge is developed, and because of this dispersion of electron, this force is developed, and that force bind to such molecules. It was discovered initially by Fritz London, so the name of this force is given by London force, and because of the dispersion of this electron, this force is developed, so its name is given as dispersion force. So
we see here that the binding force in such molecule is the dispersion force or London force, and other characteristic feature is that they are insulators, they are soft, and their melting and boiling point is low. For example, solid argon, solid hydrogen, solid iodine, solid methane, and solid carbon dioxide, which is also known as dry ice. तो अभी हमने ये देखा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए हुए होते हैं। अब उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, वो है हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आइए देखते हैं हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और उनका अपना कुछ एग्जाम्पल और उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर 1 कैटेगरी इसकी क्या आती है, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इसके हम क्या देखेंगे कि दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सच सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, such solids are made up of molecules which are polar in nature. They are polar in nature. इनका नेचर जो है पोलर होता है, और ये पोलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। नेक्स्ट इज द बाइंडिंग फोर्स of these molecules is dipole force of attraction। dipole force of attraction, इनके बीच में dipole फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उन्हीं की वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं और एक क्रिस्टलाइन पैटर्न लेते हैं। थर्ड पॉइंट, दे आर सॉफ्ट एंड हैव लो melting and boiling point। इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन कंपैरेटिवली नॉन पोलर के ये थोड़ा ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो दे आर इंसुलेटर they are insulators। Some examples of these solids are HCl solid form में and solid SO2। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ये भी मॉलिक्यूल के ही बने हुए होते हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स में स्लाइटली चार्ज डेवलप हो जाता है, 2 पोल डेवलप होते हैं, इसलिए इनको डाइपोल बोलते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एटम्स बाउंड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो इनके बीच में होता है उसका सेंट्रल एटम जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक एटम की तरफ स्लाइटली शिफ्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ड्यू टू दिस
there is the development of polarity, and this polarity is allowed because of this shifting, and due to this polarity the molecules are bound together by a force that is known as डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखा जाए तो इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर नॉन पोलर के कंपैरिजन में इसको हम देखें तो कंपैरेटिवली हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बट इन जनरल इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और ये सॉफ्ट होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। इनका एग्जाम्पल आपने देखा कि HCl और इसका सॉलिड SO2 होता है। आइए अब नेक्स्ट कैटेगरी के हम लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी हमारा होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा कि आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो थर्ड कैटेगरी में है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सॉलिड्स की जो मॉलिक्यूलर तो हैं लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो नंबर 1, these solids are having molecules which contain hydrogen bonding between two such molecules। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ HOH, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है आइस के फॉर्म में। दूसरा हमारा HOH यहाँ पर हमने ले लिया, एक थर्ड और ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर पोलरिटी डेवलप होता है इनकी शिफ्टिंग की वजह से स्लाइटली। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, इसी तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव और इनके बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ डेवलप हो जाता है। ये दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में खींचे रहते हैं एंड दे मेक द क्लस्टरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दे आर hard and insulators। Next point, they have low melting and boiling point। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका कंपैरेटिवली लो होता है औरों के कंपैरिजन में, लेकिन जो यहाँ पर जो हमने सेकंड कैटेगरी लिया था पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइस जिसको हम H2O बोल रहे हैं एंड सॉलिड SO2, ये इस कैटेगरी में आ रहा है। सॉलिड NH3। तो अमोनिया हमारा सॉलिड कैटेगरी में जब होता है तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है, बाइंडिंग फोर्स इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर clustered together to make the crystalline pattern and they are hard enough। एंड जैसा कि आपने देखा होगा आइस जो होती है वो किसी को
के ऊपर फेंक दिया जाए तो उसका सर फट सकता है, इतना हार्ड होता है। तो उस समय ये हार्ड होता है, बट इतना भी नहीं हार्ड होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, टूट नहीं सकता है। और ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, लो होता है, और ये इंसुलेटर्स कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर इनके एग्ज़ाम्पल की एक बात। एग्ज़ाम्पल इसका आइस हो गया, सॉलिड वाटर जो होता है सॉलिडिफाई कंडीशन में आइस की तरह से बिहेव करता है, उसे आइस का नाम दिया जाता है। और अमोनिया भी सॉलिडिफाई कर दिया जाता है, तो अमोनिया भी इसी तरह से बिहेव करता है। तो ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में बेशक हैं, लेकिन इनके भीतर जो बाइंडिंग फोर्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से हमने ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा, उनकी जो कैटेगरीज थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड कैटेगरी का, जिसको हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स। तो लेट अस सी द आयनिक सॉलिड्स एंड देयर कैटेगरीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब हमारा आता है आयनिक सॉलिड्स और उस आयनिक सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स की। अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आयनिक सॉलिड्स में नंबर 1 पॉइंट क्या है कि दे हैव आयंस एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आयंस एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, आयंस होते हैं। नंबर 2, they are insulators in solid state. They are insulators in solid state, but सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर्स होते हैं, बट इन aqueous and molten condition, aqueous और molten condition में क्या होता है, they can conduct electricity. They can conduct electricity, means they behave as electricity, that is they behave as कंडक्टर। यहाँ पर ये कंडक्टर की तरह से बिहेव तब करते हैं जब ये मॉल्टन कंडीशन में हो जाते हैं, या फिर इनकी जो कंडीशन होती है वो मॉल्टन के अलावा वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाता है, तो होता है या थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन ब्रिटल सॉलिड्स, ये जो होते हैं ब्रिटल होते हैं सॉलिड्स। दे हैव हार्ड structure and have high melting point and बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता हाई होता है। इनका एग्जांपल मैं लेता हूँ तो इसका NaCl हो गया, क्रिस्टल्स हो गए, कि Br हो गया, MgCl2 हो गया, NaI हो गया, etc।
तो इस तरह से हमने कुछ आयनिक सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया। तो आयनिक के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में डिस्कस किया कि दे हैव आयन्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम बात करें तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो आयन की तरह से होता है, आयन्स होता है। कैसे आयन्स है देखो यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ इन्हीं NaCl की मैं बात करूँ, देखो NaCl जब ब्रेक होता है तो अपने Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। सिमिलरली जो हमारा MgCl2 है ये ब्रेक होता है तो Mg++ और Cl- में ब्रेक कर जाता है। तो दे आर आयन्स and the constituents are iron, and the binding force in these are Coulombic force. The binding force is Coulombic force or electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है इनके बीच में, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। तो बाइंडिंग फोर्स आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो डिफरेंट आयंस के बीच में जो फोर्स यहाँ हो रहा है उसको ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर बाइंड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बाय two different charges, one is positive and other is negative. So sometimes इसको कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर आज की क्लास में क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड का और उनकी डिफरेंट कैटेगरी, और इसके बाद आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी हमने देखा और उनके आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा, कुछ एग्जांपल हमने देखा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।